Hello public, probability continue. If the letters of the word regulations are arranged at random, find the probability that all the vowels are together. ठीक है, तो भैया vowels कितने हैं इधर देखो, ई यू ए आई ओ पांचों मिल गए हैं. एंड कंसोनेंट्स आर जी एल टी एन एस. Whenever the word arrange is there, we are going to use what? Permutation. So in all there are how many letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letters can be arranged among themselves in 11p11. That is 11 factorial ways. All the possibilities, that is n of s. वॉवेल्स आर वॉट टूगेदर. जब भी टूगेदर रहेगा इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? एक कंसिडर करेंगे. तो ए ई आई ओ यू, दिस वी विल कंसिडर एज वॉट? 1 2 3 4 5 6 and 7. So 7 letters can be arranged in how many ways? 7 factorial ways. And this 5 vowels which form a group, they can be arranged in how many ways? 5 factorial ways. झेपा क्या बॉस? जब भी वर्ड रहता है टूगेदर, वी कंसिडर देम एज व्हाट? 1. ये 5 मिलके हमने इसको एक कंसिडर किया. 1 2 3 4 5 6 7. 7 letters can be arranged in how many ways? 7 factorial ways. And these 5 letters which form a group, they can be arranged in how many ways? 5 factorial ways. So what will be the probability? Probability will be how much? 7 factorial into 5 factorial whole upon 11 factorial. Ting 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 ting. झेपा क्या क्या कर रहा हूं मैं? Whenever together is there, we will consider them as what? One group. For example, find the probability that vowels are not together. When it is not together, 1 माइनस मत करो डायरेक्टली, बिकॉज 1 माइनस सिर्फ 2 के लिए चलता है. अभी आपके जो 7 कंसोनेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कोणचे कोणचे है? ये आहे तुमचे आर जी एल टी एन आणि एस. कितने हैं भाई? 6. 1 2 3 4 5 6. Now this 6 consonants, 6 letters which are consonants, can be arranged in how many ways? Can be arranged in 6p6, that is 6 factorial ways. And for remaining 5 vowels, there are how many places? 1 2 3 4 5 and 2 places at the ends. Please remember, जितने भी letters आपने बिठाए उससे एक extra. So for 5 vowels there are 7 places, and they can be arranged in how many ways? Therefore they can be arranged in 7p5 ways. So total number of ways will be how much? 6 factorial into 7p5. What will be the probability? Probability of B will be n of B upon n of S. This will become 6 factorial into 7p5 whole upon 11 factorial. Calculations आप लोग कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर एग्जैक्टली 4 letters बिटवीन आर एंड ई. ओके, अभी इसमें वोवेल्स कंसोनेंट्स नहीं है. देर शुड बी 4 letters बिटवीन हाउ मच? आर एंड ई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 places. If R is in the first place, 1 2 3 4, okay, तो
E will be in which place? सिक्स्थ प्लेस, बराबर ना? ये दोनों डाला तो बीच में कितने जगह है? चार, चार चाहिए. देर आर एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन R and E. If R is in the first place, E will be in the sixth place. Or second place, seventh place, third place, eighth place, fourth place, ninth place, fifth place, 10th place, sixth place, 11th place. झेप रहा है? और ये अपन उल्टा भी कर सकते. E in sixth place, E in first place, and R in which place? Sixth place. 2 7 3 8 4 9 5 10 and 6 11. म्हणजे काय? R and E can be arranged in how many ways? In 12 ways. बराबर है? R और E can take places what? R and E can take places first, sixth, or second, seventh, third, eighth, fourth, ninth, fifth, 10th, और sixth, 11th. सिमिलरली उल्टा करेंगे तो R and E can be arranged in how many ways? 12 ways. बाकी के रिमेनिंग कितने बच्चे? रिमेनिंग 9 letters can be arranged in how many ways? 9 factorial ways. Therefore, what will be n of C? 12 into 9 factorial. Therefore, what will be the probability? Probability will be 12 into 9 factorial upon 11 factorial. झेप रहा है क्या? क्या 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 कर रहा हूं मैं. और करते हैं आज इसके ऊपर ही प्रॉब्लम्स करते हैं अरेंजमेंट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, if the letters of the word flower, FLOWER, okay, are arranged at random, find the probability that the order of the consonant is not changed. देखो क्या बोलता है ये बोलता है आपके कंसोनेंट्स कौन से है? कंसोनेंट्स है एफ एल डब्ल्यू और आर, और आपके वॉवेल्स क्या है? आपके ओ एन ई. First of all, total number of letters are 6. They can be arranged in how many ways? 6 factorial ways. तो आपका n of s कितना हो गया? 6 factorial. अभी सुनिए, कंसोनेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मतलब FLWR ऐसा ही रहने वाला है. टोटल कितने प्लेसेस है आपके पास? 1 2 3 4 5 6. करेक्ट. FLWR ऑर्डर विल नॉट चेंज, मतलब इसको वी डोंट हैव टू अरेंज. झेपा क्या? क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए. तो ये 6 प्लेसेस है. देयर आर 6 प्लेसेस एंड 4 कंसोनेंट्स. Out of 6, 4 can be selected in how many ways? Sexy 4 ways. झेपा क्या? इधर मैंने सी क्यों लिया है? क्योंकि इसको अरेंज नहीं करने का है. बाकी बच्चे कितने? रिमेनिंग 2 vowels can be arranged in how many ways? In 2 factorial ways. Therefore, what will be your n of a? It will be 2 factorial into sexy 4. Therefore, what will be your probability? 2 factorial into sexy 4 को आप लिख सकते हैं sexy 2 whole upon
6 फैक्टोरियल, करेक्ट है ना? बिकॉज NCR is equal to NC n minus R. So this will become 2 factorial मतलब 2 6 into 5 upon 1 into 2, और ये कितना हो जाएगा 6 factorial मतलब 720. 2 2 cancel, this will become 30 upon 720. Happy birthday, this will become 1 upon 24. टिंग 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 टिंग, झेप रहा है क्या? सी ऑर्डर विल नॉट चेंज, ऑर्डर ऑफ द कंसोनेंट्स इज नॉट चेंज. इसका मीनिंग क्या है? ये चारों को अपने को हलाने का नहीं है, इनको अरेंज नहीं करने का है. अरेंज नहीं करने का है तो मतलब मुझे सिर्फ सिलेक्ट करने का है, और जब भी सिलेक्ट करने का रहता है तो तभी यूज ओनली व्हाट? यूज ओनली कॉम्बिनेशंस. ओके, चलिए जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम. इट इज व्हाट? Words formed from the letters of the word probability are formed by taking all letters at a time. The probability that both B's are not together and both I's are not together. तो ध्यान दीजिए, अभी एक तो प्रोबेबिलिटी वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So your n of s will be how much? 11 factorial upon. Now see what is repeated. I is repeated how many times? I is repeated 2 times. So divide by what? 2 factorial. B is repeated how many times? 2 times. So divide by what? 2 factorial. So this is what your n of s. क्या बड़बड़ कर रहा है देखिए ना. P R O B A वापिस B, फिर है I L, वापिस है I T और Y. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. जो रिपीट होएगा उससे आपको डिवाइड करना है. प्लीज रिमेंबर, जो भी रिपीटेशन है उसको डिवाइड कर दीजिए. सो दिस इज व्हाट? माय n ऑफ s. नाउ B's आर नॉट टूगेदर एंड I's आर नॉट टूगेदर मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम लोग. What will be complement? If you consider, let us suppose A be the event that B and B's are not together. B's are not together and I's are not together. So what will be A dash? B's are together and I's are together. सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? बी को एक साथ ले लिया मतलब PROALTY, दोनों बी को एक कंसिडर किया, दोनों आई को एक कंसिडर किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नाउ 9 अल्फाबेट्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 9 फैक्टोरियल वेज. और अंदर वाला आप अगर हलाएंगे तो चेंज नहीं होने वाला बिकॉज दे आर सेम. This form a group. This BB can be arranged in how many ways? 2 factorial. Repeat हो रहा है इसलिए 2 factorial. 2 factorial repeat हो रहा है इसलिए 2 factorial. तो इनका हो गया हैप्पी बर्थडे. तो आपको कितना मिल गया? 9 factorial. So what will be the probability? Probability of A dash will be 9 factorial whole upon 11 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. So this will become 9 factorial into 2 into 2 whole upon 11 factorial is 11 into 10 into 9 factorial. इसका हो गया हैप्पी बर्थडे, इसका हो गया हैप्पी बर्थडे. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash? 2 upon 55. Therefore what will be probability of A? 1 minus probability of A dash. 1 minus 2 upon 55, which is how much? 53 upon 55. नहीं समझा है? वेरी गुड. हम लोग और एक करते हैं. द चांस दैट, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी दैट the vowels are separated in the arrangement of the word horror. In the arrangement of the word horror. तो आप देखिए,
आपको इधर दिखेगा, आपको एच ओ 2 बार है और आर कितनी बार है, 3 बार है। तो आपका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस विल बी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 6, ओ इज रिपीटेड 2 टाइम्स डिवाइड, आर इज रिपीटेड 3 टाइम्स डिवाइड। जितना भी रिपीट होएगा उतना आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या बोला है, वॉवेल्स आर सेपरेटेड म्हणजे नॉट टुगेदर। तो बाकी के बच्चे हम अरेंज करेंगे, एच आर आर आर, एच आर 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 कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, कैन बी अरेंज्ड इन, लेटर्स कितने हैं, 4, मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, लेकिन आर रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 बार, सो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। झेप रहा है क्या, जितना भी रिपीट होएगा उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। दो वॉवेल्स जो है ओ ओ, उसके लिए जगह कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, प्लीज रिमेंबर टोटल कितने हैं, 4, एक एक्स्ट्रा। ओके, नाउ फॉर 2 vowels there are 5 places. So they can be arranged in how many ways, they can be arranged in 5p2 ways। लेकिन वो ओ रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, रिपीट हो रहा है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो व्हाट विल बी योर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल होल अपॉन, नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हैप्पी बर्थडे। ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 5p2 मतलब 5 इंटू 4, नीचे आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 हैप्पी बर्थडे। योर आंसर विल बी हाउ मच, 2/3। झेप रहा है क्या, क्या कर रहा हूं मैं, जब भी रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये 2018 में आया था, द चांस दैट all else are together in the letters of the word, in the letters of the word Hulululu. This was in CET 2018। हुलूलुलू कर रहे थे बच्चे लोग। ओके, नाउ आप लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, एच यू 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 यल यल यल, बराबर ना, यू रिपीट हो रहा है 4 बार, एल रिपीट हो रहा है 3 बार। तो आपका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं, 8। जो रिपीट होता है वो नीचे डालिए, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। झेपा क्या, जो भी रिपीट हो रहा है उसको क्या डालना है, नीचे। आपको क्या पूछा है, ऑल एल्स आर टुगेदर, टुगेदर बोला तो 1 2 3 4 5, और ये 3 एल को टुगेदर बोला तो एक कंसिडर करने का, 1 2 3 4 5 6। नाउ 6 कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 6 फैक्टोरियल वेज। पर यू रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो डिवाइड बाय व्हाट, 4 फैक्टोरियल। जो भी रिपीट हो रहा है नीचे डालना है। 3 एल्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 1 वेज, क्योंकि वो सेम है, 3 वर्ड्स है, 3 फैक्टोरियल, रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, हैप्पी बर्थडे। What is the probability? Probability will be how much? Probability will be n of a upon n of s. This will become 6 factorial upon 4 factorial whole upon 8 factorial upon 4 factorial into 3 factorial. तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 होल अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हो गया हैप्पी बर्थडे, ये हो गया हैप्पी बर्थडे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/28। 2018 में रहते थे तो आपको समझता था कि क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल और करते हैं, द चांस दैट
all s are not together, अभी बोल रहा है not together in the letters of the word, in the letters of the word Mississippi, Mississippi. Okay, find the probability that the all s are not together. आराम से लिखते हैं हम लोग। अभी क्या है इसमें, एक m है, I, S, PP, बराबर। 4 और 4 8 और 2 10 और 11, तो आपका n ऑफ s कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल। I is repeating 4 times, divide by 4 factorial, s 4 times, divide by 4 factorial, p 2 times, divide by 2 factorial। जो भी रिपीट हो रहा है उसको क्या डालना है आपको नीचे। अभी उन्होंने क्या बोला है, ऑल एस आर नॉट टूगेदर, तो मैं क्या क्या अरेंज करूंगा, MII, दिस कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, सांगा टेल 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहा है डिवाइड 4 फैक्टोरियल, रिपीट हो रहा है डिवाइड 2 फैक्टोरियल। बाकी 4 एस के लिए जगह कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। 8 प्लेसेस एंड हाउ मेनी लेटर्स, 4 अल्फाबेट्स, दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 8p 4 वेज। लेकिन वो रिपीट हो रहा है तो डिवाइड कीजिए। जब भी रिपीट हो रहा है आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अभी हम लोग एन ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी विल बी 7 factorial into 8p4 whole upon 4 factorial into 2 factorial into 4 factorial whole upon 11 factorial upon 4 factorial 4 factorial and 2 factorial। तो इनका हो गया हैप्पी बर्थडे। तो क्या होने वाला है आपको, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो दिस विल बी 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल होल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। टिंग टिंग टिटिंग। ध्यान दीजिए, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स are arranged at random, find the probability that C comes before E, E before H, H before I and I before S। एक तो पहला मैथमेटिक्स वर्ड अपन लिखते हैं, कुछ रिपीटेशन है क्या, MATHEMATICS, करेक्ट। 1 2 3 6 7 8 9 10 11। तो अगेन व्हाट विल बी योर n ऑफ s, इट विल बी 11 फैक्टोरियल। m repeats 2 times, a repeat 2 times, t repeat 2 times, so your n of s will be how much, 11 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial। अभी किसका प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट c comes before e, E comes before H, H comes before I and I comes before S। इसका मीनिंग क्या है, ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इनको मुझे, आई डोंट वांट टू अरेंज देम, आई डोंट वांट टू अरेंज CEHIS, म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, there are 11 places, sorry, there are 11 alphabets out of which we have to select what, only 5। now selection रहेगा out of 11, 5 can be selected in how many ways, 11C 5 ways। झेप रहा है क्या, ये सिर्फ सिलेक्शन उन्होंने बोला, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। सी हमेशा ई से पहले, क्या बोला उन्होंने, सी शुड बी बिफोर ई, ई शुड बी बिफोर एच, एच शुड बी बिफोर आई, आई शुड बी बिफोर एस। मतलब दिस ऑर्डर शुड नॉट चेंज। ऑर्डर अगर चेंज नहीं करना है मतलब इसको अरेंज नहीं करना है, अरेंज नहीं करना है तो व्हाट वी हैव टू यूज, व्हाट, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बाकी के कितने बच गए, अपन ने क्या क्या ले लिया है, हमने ले लिया है CEIH और S, तो बाकी के बच्चे 6 बच्चे। नाउ 6 बच्चे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 6 फैक्टोरियल वेज। M रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स,
ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है। जब भी रिपीट हो रहा है क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11c5 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। खटाखट 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 खटाखट। 11c5 को भी 11 फैक्टोरियल लिखेगा, वो भी खटाखट हो जाएगा। और आप लोग प्लीज सॉल्व कर दीजिए, वी विल गेट द आंसर। टिंग टिंग टिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम। 25 persons were invited for a party by a host, मतलब होस्ट को मिला के टोटल कितने हो गए, 26। What is the probability that two particular persons be seated on either side of the host at a circular table? Now क्या बोला है उन्होंने, 25 persons plus one host। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए, 26। टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक का। ना जब भी सर्कुलर टेबल रहेगा, याद रखिए 26 पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स in a row in 26 factorial ways। और इंस्टेड ऑफ इन अ रो उन्होंने क्या बोला है, सर्कुलर टेबल। जब भी सर्कुलर रहेगा, जितने भी पर्सन्स रहेंगे या अल्फाबेट्स रहेंगे -1। सो आपका एन ऑफ एस टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 25 फैक्टोरियल। झेपा क्या बोला है मैंने, जब भी सर्कुलर रहेगा वन लेस, वेन एवर सर्कुलर रहेगा तो एक कम करो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 26, वन लेस, दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 25 फैक्टोरियल वेज। ना उन्होंने क्या बोला है, होस्ट एंड टू पर्टिकुलर पर्सन्स सिट टूगेदर, करेक्ट ना, आइदर साइड ऑफ द होस्ट, मतलब ये दोनों साथ में हैं, मतलब P1 H और P2 साथ में है, H P1 और P2 के बीच में है। तो टोटल कितने थे, 26। 26 में से 3 गए, कितने बच्चे, 23। सो दिस वन ग्रुप प्लस 23 पर्सन्स, करेक्ट। सो टोटल कितने हो गए, 24। Now 24 can be arranged along the circular table in how many ways, 24 minus 1 factorial। याद रखिए सर्कुलर टेबल रहेगा तो एक कम करना है, ओके। एंड दिस P1 and P2 they can be arranged in how many ways, 2 factorial ways। So what will be your n of a, 23 factorial into 2 factorial। So what is the probability? Probability of A is equal to n of A upon n of S। 23 factorial into 2 factorial upon 25 factorial। प्लीज रिमेंबर एक ही बात, जब भी सर्कुलर टेबल रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स -1, 25 प्लस 1 26 हो गए, 26% -1 25, दे कैन अरेंज इन 25 फैक्टोरियल ways। प्लीज रिमेंबर दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 25 फैक्टोरियल वेज। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स करते हैं। 2 dice are thrown, 2 dice are thrown if at least one of the die, if at least one of the die shows a number 6, okay, what is the probability that, what is the probability that the sum of the numbers is 9। अभी आराम से सुनिए,
जब भी 2 डाइज आर थ्रोन, आपका एन ऑफ एस कितना रहता है? 36। बराबर है। अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है, इफ एटलीस्ट ये कुछ भी नहीं दिया है, सपोज इफ 2 डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट? 9। नाउ 9 इज बिटवीन व्हाट? 8 एंड 12। 8 एंड 12 रहेगा तो मैंने आपको दिया है 13 माइनस आर। करेक्ट ना? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज 13 माइनस आर। फर्स्ट लेक्चर में दिया है। आर कितना है? 9। सो देर आर 4 सैंपल पॉइंट्स हुज सम इज व्हाट? 9। बराबर है ना? कौन से रहने वाले आपको मालूम है? 5 4 4 5 6 3 एंड 3 6। करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/36 विच इज हाउ मच? 1/9। पर इसमें क्या दिया है? इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो 6। इसमें इसका मीनिंग क्या है? आपका एन ऑफ एस चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? बिकॉज एटलीस्ट वन ऑफ देम इज व्हाट? 6। तो आपको भी मालूम है 6 1 6 2 6 6। इसके ऊपर रहेगा 6 5 6 4 डॉट 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 6 1। एटलीस्ट 1 इज 6। ये कितने हो गए अपने? ये कितने हैं? 6। और ये कितने हैं? 6। ये एक बार डबल बार काउंट हो गया, तो आपको कितने मिलेंगे? 11। और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 6 एंड द सम इज 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी विल बी हाउ मच? 2/11। झेपा कह रहे मैंने क्या किया है? देखना भाई, एक तो भी 6 चाहिए, तो टोटल कितने आएंगे? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। और द सम इज 9। ये कितना हो गया? 6 3 और 3 6। एक ही 6 चाहिए अपने को, एटलीस्ट वन शुड बी 6। सो दो ही इवेंट है, दो ही सैंपल पॉइंट्स है, सॉरी दो ही सैंपल पॉइंट्स है। तो प्रोबेबिलिटी विल बी हाउ मच? 2/11। ये मैंने डायरेक्टली किया है। अगर आप कंसीडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल सेकेंड मेथड, बड़ा है तो बेहतर है। लेट अस सपोज ए बी द इवेंट दैट व्हाट? द नंबर, द सम ऑफ द नंबर्स लिखते हैं, sum of the numbers is what? 6, and b be the event that the sum is what? 9. So आपको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ b with the condition that a has occurred. sum of the numbers is 6 नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है? at least one die show 6। तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसा बड़ा बड़ा किया तभी भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको मिलेगा 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगा आपको 11/36। सो दिस विल बिकम हाउ मच? 2/11। सेम ही आने वाला है, लेकिन अब इसमें देखिए आपको समझ जाएगा। और प्रॉब्लम्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम a pair of dice is thrown, or if two dice are thrown, same type, if the sum of the numbers is even, if the sum of the numbers is even, what is the probability that it is a perfect square? सम क्या है? इवन। टोटल कितने रहते हैं आपके पास? 36। सम इवन, एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 18। आधे इवन सम रहते हैं और आधे कितने रहते हैं? ऑड रहते हैं। नाउ आपका मिनिमम स्कोर कितना है व्हेन 2 डाइज इज थ्रोन? 2। मैक्सिमम कितना स्कोर है? 12। उसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन से आते हैं? 4 और 9। करेक्ट। 9 तो लेना नहीं है। सम इज इवन मतलब 4 आने वाला है। सम इज इवन, सम इज 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 4? सम इज 4। 4 इज बिटवीन व्हाट?
2 and 7, आपका आंसर क्या रहता है? 2 and 7 रहेगा, तो R-1 नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स पहले दिन लिख के दिया है, तो 4 - 1 3, so your probability will be how much? 3/18, that will be how much? 1/6. डायरेक्टली जो भी कंडीशन दिया रहेगा है उससे आपको क्या करना है? एन ऑफ एस को कम करना है। आपको क्या करना है? एन ऑफ एस को कम कर देना है, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, next problem. What is given? It is given that a bag contains 4 black, 5 white and 6 red balls. Two balls are drawn at random, one after the other, without replacement. Find the probability that at least one ball is what? Black. अभी क्या बोलता है ये बोलता है कि एक बैग में देर आर 4 ब्लैक, 5 white and 6 red balls. Now whenever the word without replacement, okay, with replacement, kept aside, वन बाय वन, ऐसा कुछ भी रहेगा, यू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज वन बाय वन एंड देन मल्टीप्लाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये 4 वर्ड्स जब भी आएंगे, यू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज वन बाय वन एंड देन मल्टीप्लाई। आपको क्या बोला है? हाउ मेनी बॉल्स आर ड्रॉन? 2 बॉल्स आर ड्रॉन, लेकिन 6 + 4 10 + 5 15, 15C2 नहीं लिखना है, एक एक करके आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि जब भी ये 4 वर्ड्स रहेंगे तो एन ऑफ एस डोंट राइट दिस एज 15C2, राइट इट एज व्हाट? 1 1 करके, इट विल बी व्हाट? 15 × 14। बाद में देखते हैं वो। नाउ व्हाट इज द इवेंट? लेट ए बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लैक। जब भी एटलीस्ट वन रहेगा, इट इज कन्वीनियंट टू यूज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट। नो बॉल्स आर ब्लैक। करेक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 15। कौन से है? 4 ब्लैक, 5 वाइट एंड 6 रेड। okay, so no balls are black, it the probability will be what? first ball अगर white लिया तो ये टोटल कितने हैं इसके? 11। 11 में से मैं एक बॉल निकाल रहा हूं, तो 11C1/15C1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स इसमें से एक बॉल निकाल दिया तो एक इसमें से कम हो गया, तो इसमें अभी टोटल कितने हो गए? 10, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 14। झेपा क्या भैया? एक एक करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और मल्टीप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो इसका हो गया हैप्पी बर्थडे, इसका हो गया हैप्पी बर्थडे, इसका हो गया हैप्पी बर्थडे, तो दिस विल बिकम हाउ मच? 11/21। सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? इट विल बी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 - 11/21, दिस विल बिकम हाउ मच? 10/21। झेप रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर 1 बाय 1 या केप्ट असाइड, फॉर एग्जांपल एक और एक प्रॉब्लम करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम ये टाइप। अ बॉक्स कंटेन्स 8 टिकट्स, ओके, नंबर्ड एज 1 2 3 5 7 8 9 10। A ticket is drawn and kept aside, okay, kept aside, then second ticket is drawn, then find the probability that both tickets are what? Both tickets are odd। ओके, अभी देखिए केप्ट असाइड, ये जो वर्ड आया है, एक एक करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। अभी ऑड नंबर कितने नंबर से? इवन नंबर्स कितने हैं? 2 8 और 10। और ऑड नंबर्स आपके पास कितने हैं?
1, 3, 5, 7 और 9. बोथ द टिकट शुड बी वॉट ऑड, बोथ आर ऑड, मतलब पहला टिकट ऑड चाहिए. टोटल नंबर ऑफ ऑड टिकट्स इज 5, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज 8. तो 5/8. Now when a ticket is drawn from this, it is kept aside. For example, if you select 9, 9 is kept aside. बाकी कितने odd बच्चे? 4 बच्चे. टोटल कितने बच्चे? 7 बच्चे. ये 4 और ये 3. तो probability will be 5/8 into 4/7. That will become how much? 5/14. झेपरा है क्या क्या मैं कर रहा हूं? सी केप्ट असाइड बोला है. अगर उन्होंने इंस्टेड ऑफ केप्ट असाइड अगर उन्होंने बोला है कि द बॉल इज रिप्लेस्ड इन द पैक, तो जो मैंने निकाला टिकट जो मैंने निकाला वो वापस इसमें मैंने रिप्लेस कर दिया. तो वापस इसमें ऑड टिकट्स कितने हो गए? 5. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो गए? 8. इन दैट केस योर आंसर विल बी 5/8 इंटू 5/8 व्हेन द टिकट इज व्हाट? टिकट इज अगेन रिप्लेस्ड. ओके तो वेन एवर द वर्ड रिप्लेस्ड, केप्ट असाइड विथ रिप्लेसमेंट 1/1 रहेगा, तो एक एक करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और मल्टीप्लाई करना है. इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम. ओके और प्रॉब्लम्स वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर. चलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.